Bismillahirrahmanirrahim. I'm Rubab Rashad with my group mates Wajid Ali and Ghulam Rasool. So the topic of our final year project is optimal sizing and placement of distributed generators in IEEE radial distribution system by using modified particle swarm optimization techniques. Under the supervision of Dr. Gulsher Ali and co-supervised by engineer Shoaib Ahmed and engineer Mohammad Samad. So these are the contents which are going to be discussed in our presentation. Introduction, problem statement, distributed generators, software used, literature review, flowchart, results, FIB progress, and then the conclusion. So basically the introduction of our project is electrical energy is generated in bulk amount at centralized place and transmitted over long distances called transmission system, and then finally it is used by the large number of users. So during all these processes, several technical and non-technical losses occurs, like a considerable amount of power losses, increasing environmental impact, and the disturbed voltage profile. So these problems can be solved or minimized by the introduction of distributed generators in the distribution network. Moreover, the problem statement is considerable amount of power loss, disturbed voltage profile at the user end, cost issues due to the huge line losses. And these all problems makes the system less reliable as well. So why we use distributed generators? So basically DG system uses an approach that works with the small scale technologies to produce electricity close to the end users. It has many small generators of size 10 to 1500 kilowatt which are installed at strategic various points throughout the system, and that can be renewable or non-renewable generators as well. So the following are the advantages of DG system. Economical advantages approaches, that is because due to the reduction of transmission and distribution cost, and environmental advantages is due to the reduction of sound pollution and emission of greenhouse gases, and technical advantages are due to the line loss reduction and improved voltage profile. Moreover, mostly in the residential areas, the commonly used distributed generators include solar PV panels and solar photovoltaic panels, small wind turbines, energy backup generators usually fueled by gasoline or diesel fuel. These are some of the papers related to our topic which we have gone through. And next is the software used by us. We have used PSSE software, that is a tool used by power system engineers to simulate electrical power transmission networks in steady state conditions. It is a very fast and robust power flow solution for networks up to 200,000 buses at a time. This is the single line diagram of a standard IEEE 33 radial distribution system, and it is without DGs, without the placement of DGs, and the contour analysis is being done in this. So the next part is being covered by Wajid Ali, so it will be continued by Wajid. So Bismillahirrahmanirrahim. The technique which we have used in the final year project, that is particle swarm optimization. The origin of this technique is in 1995. That is used of this method is iterative method, which is soft computing iterative method, and in our project this is totally based on the iteration to find the optimum plus of DGs and plus sizes. So the PSO, its basic definition is a PSO is an iterative search technique in which particle moves around the wide area of search space according to objective functions OF, which we have taken the cost factor in accordingly in 3 DGs and plus 5 DGs. The movement of each particle is based on its own experience as well as the other experiences. So how the PSO technique works in power system that we have used. So basically we have used the pseudocode of the PSO, which is already predefined. So we take the pseudocode into our MATLAB coding. So in MATLAB coding, we have energized or we have initialized the particle, which is our DG's positions basically, and column wise. First we have taken the first DG's placement, then second DG's placement, and third, then after third DG's placement. Same as the this technique used as a 5 DGs. So we increase 2 DGs. First we take the 3 DGs, then after 5 DGs. So basically the technique which we used in PSSE
there are two iterations. First is global iteration, which we use to find the optimum places, and in the internal iteration. The internal iteration means first we place the DGs and on the different load buses. Then in internal PSO means we change the generation in each DGs. पार्टिकल को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि हमारे पास 3 DGs हैं, फिर उसको हमने जो है रो वाइज इसमें जो उसको डिफाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट हम रो को, जो पार्टिकल हैं रो को डिफाइन किया हुआ है, उसमें हमने पार्टिकल इनिशियलाइज किए हैं जो कि हमारे DGs की पोजीशन से। तो उसके बाद हमने क्या किया है कि इनिशियलाइज द पार्टिकल विद रैंडम नंबर्स। जो PSO है वो टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रीवियस पोजीशन पे डिफाइन करता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें मतलब रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो P बेस्ड होता है, मतलब उसका है कि पर्सनल बेस्ट, और एक होता है ग्लोबल बेस्ट। और पर्सनल बेस्ट क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल की खुद की एक करंट पोजीशन होती है जहाँ पे वो एक्चुअली मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने जो है रैंडम नंबर्स जनरेट किए थ्रू मतलब कंप्यूटर्स। तो वो उस रैंडम नंबर से हमने कॉस्ट फैक्टर निकाले, उसके पावर लॉस निकाले, उसमें से हमने देखा कि उसका जो है बेस्ट कौन सी पोजीशन है। तो फिर हमने जो है वो कोडिंग में हमने जो ऐड की, तो उसके हिसाब से हमारा जो कॉस्ट फैक्टर उसमें से निकला। तो हमने एक्चुअली कोडिंग में कॉस्ट फैक्टर एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है कॉस्ट फैक्टर, उसकी जो लिस्ट पोजीशन होगी वो एक्चुअली PSO उसके हिसाब से कन्वर्ट करेगा। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं। पहले तो हमें रैंडम पोजीशन मिल गई, उसके बाद हमने कॉस्ट फैक्टर निकाला, तो हमारी एक आइट्रेशन बन गई। तो आइट्रेशन एक बन गई, उसके बाद जो है पैरेलली सारी आइट्रेशन हमारी बनती जाती हैं। तो उसके हिसाब से हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वेलोसिटी का एक प्रॉपर फार्मूला है जिसे कि PSO में हम यूज़ करते हैं। उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट होती है, फिर वेलोसिटी को अपग्रेड करते हैं उसकी करंट पोजीशन को ऐड करके, ठीक है। तो प्रीवियस पोजीशन हमने रैंडम उसमें से निकाली जो कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग की। तो ऐसे ही हमारा जो है ये सिस्टम सारा है उसके हिसाब से कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 DGs में हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखा है वो कॉस्ट फैक्टर रखा है, क्योंकि जो मेन पैरामीटर है हमारा फॉर 3 DGs वो कॉस्ट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो उसको हमने कंसिडर करके सारे 3 DGs को उसके हिसाब से कन्वर्ट किया है। तो आगे चलते हैं। हाँ, देन हमने जो PSO के एल्गोरिथम में से जो DGs की प्लेसमेंट निकाली, 3 DGs हमने डिफरेंट बसेस पे लगाए। तो उसके बाद हमने जो लॉसेस कैलकुलेट किया, डिफरेंट लॉसेस की हमने जो है जनरेशन रखी है DGs की, वो हमने जो है 100 किलोवाट रखी थी, एंड 500 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 1500 किलोवाट। तो हमने देखा कि डिफरेंट जो जनरेशन हम करवा रहे हैं DGs की, ईच DGs की जो मतलब जनरेशन है वो 100 किलोवाट है, जो कि ये ग्राफ आप मतलब स्लाइड्स में शो हो रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे पास ईच DG की जो जनरेशन है वो 100 किलोवाट है, उसके हिसाब से हमारा ग्राफ बन रहा है। जो हमारी नॉमिनल पोजीशन है विदाउट DG वो 380 है, और हमारा जो 100 किलोवाट पे जो जनरेशन हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 600 से। हमारा जो लॉसेस मतलब हमारे सिस्टम में हो रहे हैं वो 600 से मतलब रिड्यूस होकर 380 पे आ रहे हैं। तो नॉमिनल पोजीशन से हमारा मतलब लॉसेस डाउन नहीं हो रहे। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है, तो नॉमिनल पोजीशन से हमें जो है लॉसेस को रिड्यूस करना है, तो इसके नीचे आना है। तो ये जो हमारा मतलब 100 किलोवाट पे जो हम जनरेशन करवा रहे थे ये एक इम्प्रॉपर था, मतलब इसकी साइजिंग का इशू था। तो हमने जो देखा कि इसमें साइजिंग का इशू, तो हमने साइज को नेक्स्ट किया। तो जब साइज को नेक्स्ट किया मतलब इंक्रीज किया, तो वो 1000 पोजीशन पे हमने जब जनरेशन करवाई तो उसकी नॉमिनल पोजीशन आप देख सकते हैं, रेड लाइन जो है वो 380 पे जा रही है। तो उसके बाद जो है नॉमिनल पोजीशन पे जो हमारे लॉसेस 1000 पे आ रहे हैं वो 40 आ रहे हैं, 40 किलोवाट। तो 40 किलोवाट तो हमारी जो है मतलब लॉसेस कम हुए, तो मगर साइज जो है DG की वो बहुत इंक्रीज हो गई, और हमारा जो कॉस्ट फैक्टर पैरामीटर वो भी मतलब ह्यूज हो गया। तो इसकी वजह से हमने इसको कंसिडर किया कि ये इसमें साइजिंग का जो कॉस्ट फैक्टर है वो मतलब इसमें इनफेक्टिव है। उसके बाद जो हमने जनरेशन को और इंक्रीज किया, हमने देखा कि मे बी सिस्टम में जो लॉसेज हैं और ज़्यादा कम हो, और मे बी कॉस्ट फैक्टर पे थोड़ा इफेक्ट पड़े, मगर इसमें भी जो लॉसेज हैं वो 1000 से भी मतलब बढ़ गए। जो 1000 पे जो 40 किलोवाट्स जनरेट हो रहे मतलब लॉसेज हो रहे थे, और 1500 पे 150 जो है नॉमिनल जो है हमारा लॉस रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी इनइफेक्टिव भी है, और इसमें साइजिंग का भी इशू है, और ये कॉस्ट फैक्टर भी इसमें ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्टिमम पोजीशन है वो 3 DG पे वो हमने 500 पे देखा। तो उसमें 500 में आप देख सकते हैं नॉमिनल पोजीशन से बहुत ज़्यादा कम है, और जो हमारे जो लास्ट पे जो हमारा लॉस हो रहा था वो 70 किलोवाट हो रहा था। तो हमने 500 को और 1000 को कंपेयर किया, तो हमारा 500 एक ऑप्टिमम पोजीशन थी, और इसमें लॉसेस भी बहुत
ज़्यादा रिड्यूस हो रहे थे। और इसके जो वोल्टेजेस है, हमने आगे देखा है वोल्टेजेस की जो उसके वेरिएशंस भी देखा है, तो आप उसमें देखेंगे कि वोल्टेजेस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे थे। तो हमने इस पोजीशन को ऑप्टिमम प्लेस मतलब रखा, और हमने इसमें कॉस्ट फैक्टर की भी एनालिसिस की है, तो आपको कॉस्ट फैक्टर में भी आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये ऑप्टिमम पोजीशन जो है मतलब 3 DGs में मतलब हमने कंसीडर की। उसके बाद ये कंटूर एनालिसिस है, मतलब पहले आपने देखा कि जैसे रुबाब ने बताया कि विदाउट DGs हमने जो देखा था उसमें मेजॉरिटी पोर्शन वो ब्लू था। तो ब्लू में आप साइड में देख सकते हैं जो कि स्लाइड ऑप्शन है, तो उसमें हमने जो लिमिट रखी है वो 0.94 टू 0.16 रखी है। तो उसमें आप ब्लू का एरिया देखें तो उसमें वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा कम थे वहाँ पे। अगर अब यहाँ पे आप देखेंगे वो मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो ग्रीन है, मतलब ग्रीन का जो पोर्शन आता है वो 0.97 से 1 तक आता है। तो इन बिटवीन में जो भी वोल्टेजेस हमारे होते हैं वो मतलब एक स्टेबल होते हैं और इम्प्रूव्ड वोल्टेजेस होते हैं। जब हमने इस जगह पे पोजीशन पे जो हमने डीजीज लगाए हैं, ये एक बेस्ट पोजीशन है जहाँ पे हमने ये डीजीज लगाए हैं। 500 किलोवाट ये ईच डीजी है, तो उसके हिसाब से हमारे वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। आगे चलते हैं, हमारे जो वोल्टेजेस हैं, मतलब अब हमने जो ये वोल्टेजेस निकाले ये सैंपल वोल्टेजेस है, उन वोल्टेजेस जहाँ पे हमारा पावर लॉस सडन रिड्यूस हो रहा था। तो अब 3 DGs पे 100 किलोवाट पे हमने एक ग्राफ पीछे बना के आए हैं, उसमें हमने देखा कि वो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा था, मगर उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, वो उसके लॉसेस अप टू 380 थे। तो उनका हमने बिहेवियर चेक किया है कि वोल्टेजेस में क्या वेरिएशन आ रही है। तो हमने जो 5 सैंपल्स लिए हैं पावर लॉसेस के उस पर हमने देखा कि कौन सी जो डीजीज की पोजीशन है उस पर हमने वोल्टेजेस निकाले उनकी ये वेरिएशन से। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिसमें वेरिएशंस कम होंगी वो वोल्टेज हमारे स्टेबल होंगे। वैसे ही हमने 500 पे देखा था, जो हमने कंसिडर किया था कि 500 हमारी जो है बेस्ट पोजीशन है, उसके भी हमने सैंपल्स लिए पावर लॉसेस के। उसमें उस पावर लॉसेस की सैंपल पे हमने डीजीज की पोजीशन देखी, वहाँ पे साइड्स पे हम शो हो रहे हैं आपको। तो उसमें हमने लॉसेस जो देखे हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, वो 100 पे भी आ रहे थे। ठीक है, तो ये पोजीशन हमारी, इसमें वोल्टेजेस की जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा कम भी है और ये स्टेबल सिस्टम भी है। ऐसे ही हमने जो है 1000 पे दिया था, मतलब उसके सैंपल्स लिए हैं और उसकी जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा इनस्टेबल है। और हमारे 1500 पे भी सेम पोजीशन है कि हमारा जो है ये इनफेक्टिव था मेथड, उसमें साइजिंग का भी इशू था और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था। तो इस वजह से हमने इनकी सिर्फ एनालिसिस किया, हमने दिखाया है कि वोल्टेजेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इनका। This is Ghulam Rasool. Now we are moving to cost factor. As in this slide, there are 4 to 5 companies which are providing solar systems to your household, to your commercial. So by calculating these cost of solar panel, inverters and installation charges, we have created a cost factor of our DGs to accommodate our placement and size of the DGs. So this is the cost factor results as we have calculated all the cost factor of 3 DGs which we were places in the iterations, almost 16 to 17 iterations we have performed. So when converged values are and losses were the almost 40 kilowatt. इसमें हमने क्या किया है कि कॉस्ट फैक्टर के जो है हमने कैलकुलेशन इस तरह की है कि हमारे पास डिफरेंट डीजीज हमने कनेक्ट किए, उनके लॉसेस को देखते हुए हमने कॉस्ट फैक्टर निकाला है। और कॉस्ट फैक्टर की वैल्यूज़ जिस तरह हमारे पास 500 डीजीज पे कन्वर्ज वैल्यू हो रही है, हम उसी पे लॉसेस भी हमारे कम आ रहे हैं और कॉस्ट फैक्टर भी उसी डीजीज के हिसाब से कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉस्ट फैक्टर हमारा 500 किलोवाट पे जो है ऑलमोस्ट लॉसेस जो है वो हमारे 90 हैं और कॉस्ट फैक्टर भी 8670 पे पहुँच चुका है। कॉस्ट फैक्टर जब 1000 किलोवाट पे हम निकाला है तो उस पर हमारे पास लॉसेस तो कम हुए लेकिन उसका कॉस्ट फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। इसकी वजह से ये हमारे लिए साइज़ इशू हो जाता है और कॉस्ट फैक्टर का भी इशू हो जाता है। कॉस्ट फैक्टर जब हम 1500 पे रिजल्ट्स निकाल रहे थे तो उसमें हमारे पास लॉसेस भी इंक्रीज़ हो रहे थे और उसके अलावा उसका कॉस्ट फैक्टर 3 गुना ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने 500 किलोवाट की साइज़ को भी निगलेक्ट किया है। तो ये आइट्रेशन वर्सेस 3 DG प्लेसमेंट इस तरह होगा कि PSO एक हमने आइट्रेशन की है, मुख्तलिफ जगहों पे आइट्रेशन की है और मुख्तलिफ DG प्लेसमेंट की है। उसके बाद जो है हमारे पास
एक हमारे पास आखिरी कन्वर्ज जो आनी चाहिए आइट्रेशन, वो हमारे पास सिर्फ 3 डिजीज आनी चाहिए, जहाँ पे हम अपने डिजीज को प्लेस करके और हमारे पास लॉसेस जो है वो कम से कम कर सकते हैं, और उसके अलावा उसका कॉस्ट फैक्टर भी कम से कम किया जा सकता है। जिस तरह आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बसेस जो है वो एक्स एक्सिस पे हैं और नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो वाई एक्सिस पे हैं। नंबर ऑफ बसेस में हमारे पास 33 बसेस हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 33 बसेस हमारे पास बनी हुई है, और हमारे पास हमने जो आइट्रेशन की है 3 डिजीज की, वो हमने 12 आइट्रेशन टोटल की हैं। 12 आइट्रेशन पे हमारे पास वैल्यू जो थी वो बिल्कुल लॉसेस भी बहुत कम आ रहे थे और उसका कॉस्ट फैक्टर भी कम हो रहा था। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि 12 आइट्रेशन पे हमारे पास 15 पे डॉट है, इसके अलावा हमारे पास 23 पे डॉट है और 33 पे डॉट है। तो हमारी जो प्लेसमेंट थी वो हमारी एक बस 15 पे थी, उसके अलावा एक 23 पे थी और एक 33 पे थी। जब हमने 500 किलोवाट ईच रखा था तो हमारे पास वैल्यू लॉसेस बहुत कम आए थे। पावर लॉसेस ऑफ 5 DG। नाउ वी आर मूविंग फॉर, हमारा जो था 3 DGs के हमारे लॉसेस भी कम हो गए थे, हमारी वोल्टेज पर यूनिट भी हो गई थी, हमने कॉस्ट फैक्टर भी उसका निकाल लिया था। उसके बाद हमने मूव किया था 5 DG प्लेसमेंट में। तो लॉसेस, पावर लॉसेस ऑफ 5 DG प्लेसमेंट इस तरह थे कि 10 किलोवाट पे भी हमारे पास लॉसेस कम आ रहे थे। मतलब हमारा जो लॉसेस विदाउट DG प्लेसमेंट थी वो 380 थी, लेकिन हमारे पास लॉसेस जो थे इसके 10 किलोवाट पे वो 600 ऑलमोस्ट 600 तक आ रहे थे। और हमने जब 100 किलोवाट किया तब उसके बाद लॉसेस तो कम हो रहे थे, लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट फैक्टर था वो इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको निगलेक्ट किया था। इसमें 1500 पे भी इसी तरह था कि हमारे पास विदाउट लॉसेस भी 380 आ रहे थे, लेकिन हम 15 किलोवाट का अगर हम DG इंक्रीज कर रहे थे या ऐड कर रहे थे तो उस पर जो हमारे पास लॉसेस जो है वो 430 आ रहे थे। 1000 पे भी इसी तरह था, लॉसेस तो कम हो रहे थे लेकिन हमारे पास जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो 500 हमारे पास एक ऐसी प्लेसमेंट थी जिसमें हमारे पास लॉसेस 40 आ गए थे, लेकिन इसके बाद इसका जो नुकसान यही था, हमारे पास कन्वर्ज तो हो रहा था, लॉसेस भी बहुत कम हो रहे थे, लेकिन इसका जो मेन इशू था वो कॉस्ट फैक्टर था। कॉस्ट फैक्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से ये हमें इसको निगलेक्ट करना पड़ा। So this is the cost factor results. As you can see, there is a cost factor 10 किलोवाट पे भी हमारे पास 9,000 तक जो है कॉस्ट फैक्टर हमारा इंक्रीज होता है डॉलर्स में। और इसी तरह 100 किलोवाट पे भी हमारे पास 9,000 10,000 या इस तरह कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। 1000 किलोवाट पे भी हमारे पास हमारा मेन जो मकसद था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो एक तो लॉसेस को कम करना था, दूसरा कॉस्ट फैक्टर भी हमें कम से कम रखना था, ताकि हम अगर DG कहीं पे प्लेस करें और प्लेसमेंट के बाद उसकी जो ओवरऑल हमारे पास प्राइस हो या फिर कॉस्ट हो वो भी कम हो। ऑप्टिमल साइजिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ 5 DGs, इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 5 DGs के लिए ये ऑप्टिमल साइज और प्लेसमेंट थी, लेकिन हमारे पास ओवरऑल जो इसका कॉस्ट फैक्टर था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम 5 DGs को निगलेक्ट करके 3 DGs की तरफ जा रहे हैं। With 3 DGs at 500 kilowatt generation, we have graph at x-axis we have placement of DGs, at y-axis we have losses in kilowatt, and similarly we have with 5 DGs at 1000 kilowatt, and same as the at x-axis we have placement of DGs and at y-axis we have losses in kilowatt. तो हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू थी वो ओवरऑल हम इस ग्राफ को हम अगर कंसीडर करें तो हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू थी वो लॉसेस की वो 380 किलोवाट लॉसेस के स्टार्ट में। तो रिड्यूस करते करते एट 500 किलोवाट जनरेशन में रिड्यूस करते करते हम लोग मिनिमम 70 किलोवाट्स पे हम लोग ने रीच किया। तो उसी तरह हम लोगों ने 5 DGs में उससे कम लॉसेस पे रीच किया, लेकिन हमारे पास जो जनरेशन थी वो बढ़ गई। वहाँ पे हमने 500 किलोवाट पे जनरेशन पे हमने लॉसेस के इतने अचीव किए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उससे ज़्यादा लॉसेस कम लॉसेस अचीव किए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जनरेशन
बढ़ गई है, डबल हो गई, वहाँ पे 500 है तो यहाँ पे 1000 है. सो इन दैट केस वी हैव अ इंक्रीज्ड कॉस्ट फैक्टर विद द कंपैरिजन ऑफ 5 DGs. नेक्स्ट. उसके बाद हमारे पास जो कंसिडरेशन है पावर लॉसेस की, क्योंकि हमने जब ऑब्जेक्टिव रखा था फंक्शन ऑब्जेक्टिव, तो उसके 5 DGs में हमने 2 कंसिडर किए थे. एक तो हमारे पास जो है कॉस्ट फैक्टर है, उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखकर उस सिस्टम को हम कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि उसको मिनिमम जो मिनिमम जो कॉस्ट फैक्टर आ रहा था उसको हम रख रहे थे कोडिंग में, तो उसके हिसाब से PSO उसको कन्वर्ट कर रहा था, उसके हिसाब से हमारे पास DG की प्लेसमेंट्स आ रही थी. इस वजह से हमने जो है 16 आइटरेशंस की. तो उसके बाद हमने जो उसमें हमें देखा कि जो हमारा सिस्टम जो कन्वर्ट हो रहा था वो 10 किलोवाट पे हो रहा था, क्योंकि उसका जो कॉस्ट फैक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा कम था, मगर लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, हमारे नॉमिनल से भी ज़्यादा थे. तो इस वजह से वो हमारा इतना एफिशिएंट मेथड नहीं बन रहा था. तो उसके बाद हमने क्या किया, एक ट्रेड ऑफ किया. तो ट्रेड ऑफ ये किया कि हमने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको हमने चेंज कर दिया. ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने पावर लॉसेस रखा, और उसके बाद हमने जो है आइट्रेशंस जो है मालूम करना शुरू की. तो उसके बाद हमारे पास जो आइट्रेशंस मिली वो हमने 5 आइट्रेशंस पे हमने जो है पूरी जो सिस्टम था हमारा कन्वर्ट हो गया पावर लॉसेस पे. तो जब हमने पावर लॉसेस पे हमने जो आइट्रेशंस की 500 किलोवाट पे, तो हमारे पास जो लॉसेस जो रिड्यूस हुए वो अप टू 30 थे. अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लॉसेस को रख रहे हैं तो हमारे पास जो सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं वो 30 किलोवाट हो रहे हैं. अगर हम जो कॉस्ट फैक्टर को रखेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है और उनकी प्लेसमेंट आ रही है वो 10 किलोवाट के हिसाब से आ रही है. तो हमारे पास जो लॉसेस थे वो रिड्यूस इतने नहीं हुए. तो हमारे पास जो ट्रेड ऑफ है, अगर हमारे पास जो इकोनॉमी है वो इम्पोर्टेंट है, तो हमारे पास जो हमें जो पावर लॉसेस पे हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अगर जो है इकोनॉमी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है या हम लॉसेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारे पास ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि हम जो है पावर लॉसेस वाली आइट्रेशन को जो वहाँ पे जो हमारे पास प्लेसमेंट मिल रही है तो वहाँ पे हम डिग्रीज प्लेस कर सकते हैं. तो ये एक एफिशिएंट मेथड है कि अगर हमारे पास जो सिस्टम में जो हमारे पास स्टेबल वोल्टेजेस चाहिए और लॉसेस कम से कम चाहिए, तो ये 30 किलोवाट पे हमारा जो है स्टेबल सिस्टम चल सकता है 500 किलोवाट. तो उसके बाद हमारे पास जो आइट्रेशन वर्सेस DG प्लेसमेंट में ये भी सेम ग्राफ है जैसे कि हमने 3 DG में बताया, 500 DG में मतलब 5 DGs का बताया. वहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो हमारे पास कॉस्ट फैक्टर था, मगर ये वो ग्राफ है जहाँ पे हमने 6 आइट्रेशन करके हम सिस्टम को कन्वर्ट किया, और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो हमारे पास पावर लॉसेस था, उसके हिसाब से हमने सिस्टम को कन्वर्ट किया. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो डॉट्स बता रहे हैं ये वो पोजीशन बता रही हैं कि हमने यहाँ पे जो DGs कनेक्ट किए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आइट्रेशन इंक्रीज होती गई ये ओवरलैपिंग होती गई. तो मतलब ओवरलैपिंग से मुराद के हमारे पास जो आइट्रेशंस थी या DGs की प्लेसमेंट थी वो रिपीट हो रही है. तो उसके हिसाब से ये सारी ओवरलैपिंग हो रही है. और लास्ट में आप देख सकते हैं 5वीं पोजीशन पे जो हमारे पास सिर्फ 5 डॉट्स मिल रहे हैं, मतलब कि 5 पोजीशंस ऐसी है जो 5 नंबर आइट्रेशन पे ऐसी पोजीशन है कि वो ऑप्टिमम है. तो उस पर हमारे पास जो वेरिएशन थी लॉसेस पे नहीं आती, वो बस 30 कांस्टेंट थी. हमारे पास 500 किलोवाट पे 30 की जो लॉसेस हैं उससे ज़्यादा कम नहीं है. So this is the FIV progress. So far we have covered some PSC simulation at 100%, and PSO we have implemented PSO algorithm in that 100%, and the thesis write-up is almost completed. Next, the conclusion is basically the proposed algorithm was tested on the IEEE 33 bus radial distribution system, and this development was done by controlling the inertia rate and updating the velocities of particles in the algorithm, and the obtained results were compared with the previous studies as well, showing that the modified PSO was the more accurate algorithm that works well and has the reasonable accuracy and the converged iterations as well. So this was all about the project. Thank you so much. These are the references we have taken from the data which was taken. Thank you for your attention.